તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીની મુલાકાતે છે તો બાબતપુર એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। યોગી આદિત્યનાથે સ્વાગત કર્યું। યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પણ આ તકે ઉપસ્થિત રહ્યા। તો આજે ખાસ મુલાકાતે છે વારાણસીમાં પીએમ મોદી જેની તૈયારીઓ અગાઉથી કરી લેવામાં આવી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે ગંગામાના આરતીના પણ ખાસ તેઓ દર્શન અને સાથે લાહવો લેશે આરતીનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। આ સિવાય પણ શિલાન્યાસને લગતા ઘણા કાર્યક્રમો છે। આ તમામ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેશે પીએમ। તો વારાણસીની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। બાબતપુર એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। યોગી આદિત્યનાથે તેમનું સ્વાગત કર્યું અને સાથે સાથે યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીની મુલાકાતે છે। ખાસ તેઓ આજે સંબોધન પણ કરવાના છે। આ સાંજે તેઓ ખાસ આરતી પણ કરશે માં ગંગાની। આજે જ્યારે કાર્તિકી પૂર્ણિમા છે અને સાથે સાથે દીવાદાનનું પણ આજે મહત્વ હોય છે। આ તકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીએ પહોંચ્યા છે। माननीय सांसद भदोई श्री रमेश चंद बिंद जी, माननीय विधायक नील रतन पटेल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना से देश की 135 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षित रखना बल्कि एक एक गरीब के घर तक उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी आवश्यकताओं के लिए इस पूरे कालखंड के दौरान उसे हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 1,76,000 करोड़ रुपए की हर गरीब की जरूरत को पूरा करने की योजना हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की देश के युवाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए पैकेज की घोषणा के साथ ही उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का हो, देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तताओं के साथ ही काशी के बारे में हर पल हर क्षण हर जानकारी रखने और यहाँ के लोगों की, यहाँ के विकास की, यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने की हर पल हर क्षण चिंता करने के साथ ही उसके प्रति निरंतर एक जुड़ाव के साथ आज दुनिया की दो प्राचीन नगरियों को जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन देव दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी इस पवित्र काशी में हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय આગળ બધી વાત કરીએ સ્કૂલ ફીને લઈને તો રાજકોટમાં સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે એક મોટી જાહેરાત કરી છે। જાહેરાત એ છે કે જે વાલીઓએ વિદ્યાર્થીઓની ફી નથી ભરી તેમને ઓનલાઈન શિક્ષણ અપાશે નહીં। રાજકોટ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના ઉપપ્રમુખ જતીન ભરાડે આ જાહેરાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે કેટલાક વાલીઓ એવા છે કે જેઓ ફી ભરવા નથી માંગતા।
સ્કૂલમાંથી આવતા ફોન પણ ઉપાડતા નથી. એટલું જ નહીં, તેમને તેમના બાળકોની ફી કેમ નથી ભરવી તે અંગે પણ તેઓ ખુલાસો નથી કરતા. એટલે જ રાજકોટ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે નક્કી કર્યું છે કે તેઓ વાલીઓના યોગ્ય જવાબની 15મી ડિસેમ્બર સુધી રાહ જોશે અને જો યોગ્ય જવાબ નહીં મળે તો તેઓ આ નિયમને લાગુ કરી દેશે. તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે કેટલાક એવા વાલીઓ પણ છે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાથી સત્ર ફી એપ્રિલ મહિના સુધીમાં ભરી દેવાનું કહ્યું છે. તેમના માટે આ નિયમ નથી. તેમણે ચોખવટ કરી છે જે વાલીને ફી બાબતે મળવા નથી આવવું અને કંઈ કહેવું પણ નથી તે વાલીઓ માટે આ નિર્ણય રહેશે. સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે એવો નિર્ણય લીધેલો છે કે જો 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં પણ જો વાલી શાળા સંચાલકને મળવા માટે પણ ન આવે, યોગ્ય જવાબ પણ ન આપે અને પોતાની પરિસ્થિતિથી જે છે એ વાકેફ પણ ન કરે અને જો ભરવા માટેની ઈચ્છા પણ ન દર્શાવે તો એવા જે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ જે છે એના માટે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન જે છે એ બંધ કરવું. કારણ કે એ વાલી અને વિદ્યાર્થીને જો એ એજ્યુકેશન ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની જરૂરિયાત જ ન હોય તો પછી આપવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. તેની સાથે એક વાત ચોક્કસ છે કે જે વાલીઓની પરિસ્થિતિ નબળી છે, જે વાલીઓએ જે છે એ શાળા સંચાલકનો કોન્ટેક્ટ કરેલો છે, પોતાની જે કોઈ પરિસ્થિતિ હોય એનાથી એને વાકેફ કર્યા હોય અને એમ કીધું હોય કે હું મહિના, 2 મહિના, 3 મહિના કે માર્ચ મહિના સુધીમાં ગમે ત્યારે ફી ભરીશ, તો તેવા વાલીઓ કે વિદ્યાર્થીઓને કોઈ નુકસાન અથવા તો કોઈ એનું ઓનલાઈન એજ્યુકેશન બંધ થશે નહીં. અને હવે વાત ગુજરાતને મળેલી ભેટની. અમદાવાદીઓ માટે સારા સમાચાર. એસજી હાઈવે પર 2 બ્રિજનું ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અમિત શાહના હસ્તે ઈ લોકાર્પણ થયું. હવે પકવાન 4 રસ્તા પર નહીં નડે ટ્રાફિક. સાણંદ 4 રસ્તા પાસે પણ ઓવરબ્રિજ અમિત શાહે ખુલ્લો મૂક્યો છે અને કહ્યું છે કે કોરોના કાળમાં પણ ગુજરાતની પ્રગતિ નથી રોકાઈ. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે હવે દિલ્હીમાં રોડા નાખનારું કોઈ નથી. કોવિડ-19ના સમયમાં પણ આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધારવાની આપણી જે ગતિ હતી એ રોકાઈ નથી. એ અભિનંદનીય વાત છે. કોવિડ-19ના ઓછાયાની અંદર સમગ્ર દુનિયાની અંદર જ્યારે વિકાસના કામો રોકાયા ત્યારે ગુજરાતે કોવિડ-19ની અંદર પણ વિકાસની હરણફાળ અને વિકાસની ગતિ જાળવી રાખી છે અને વધુ ગતિથી આપણે વિકાસ કર્યો. અને આજે એટલા માટે જ કોવિડ પહેલાંની જે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન હતું ગુજરાતે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. જીએસટી રેવન્યુની અંદર પણ કોવિડ પહેલાંની સ્થિતિ લગભગ ગુજરાતે પ્રાપ્ત કરી લીધી છે અને જીડીપીની અંદર પણ ગુજરાત કોવિડ પહેલાંની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં સમગ્ર દેશની અંદર શાયદ પહેલા નંબરે રહે એવી શક્યતાઓ જોવામાં મળે છે. આવનારા 30-40 વર્ષ એને ધ્યાનમાં રાખી અને આ ડિઝાઇનો બનાવીને આપણે એને વિસ્તારી કરી રહ્યા છીએ. અને આપણા માટે તો આનંદની વાત છે કે મોસાળે માં પીરસનાર છે. હવે દિલ્હીથી રોડા નાખનારા લોકો નથી. વર્ષો સુધી દિલ્હીએ ગુજરાતના વિકાસમાં રોડા નાખ્યા હતા. હવે તો મોસાળે માં પીરસનાર છે. અને જે કાંઈ આપણે માગીએ છીએ એ આપણે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ દિલ્હીની મદદથી આપણે ગુજરાતને આગળ વધારી રહ્યા છીએ. ત્યારે આવો આપણે સૌ સાથે મળીને સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. વિકાસ એક જ માત્ર મંત્ર, વિકાસ સિવાય કશું નહીં. હવે આપ જો અમદાવાદના સિંધુ ભવન 4 રસ્તા ઉપરથી પસાર થશો તો તમને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મુક્તિ જોવા મળશે. જી હા, મારી પાછળ આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદના પકવાન 4 રસ્તા પરનો જે ઓવરબ્રિજ છે તેને શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને આ ઓવરબ્રિજ શરૂ કરી દેવાતા મોટી સંખ્યાની અંદર જે લોકો અહીંથી પસાર થતા હોય છે તમામ લોકો જલ્દીથી પોતાના નિયત સ્થળે પહોંચી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ડાયવર્ઝન જે છે અત્યાર સુધી આપવામાં આવતું હતું સવારના 6 થી 9 દરમિયાન અને સાંજના 7 થી 9 દરમિયાન, તે ડાયવર્ઝન હવે બંધ કરી દેવામાં આવશે. કારણ કે જે પ્રકારે ટ્રાફિકની સમસ્યાથી પકવાન 4 રસ્તા, સિંધુ ભવન 4 રસ્તા પાસેના વિસ્તાર છે તે ધમધમતો હતો, તેમાંથી મુક્તિ મળી ચૂકી છે. સાંજનો સમય વધારે મહત્વનો રહેશે કારણ કે સાંજના સમય સૌથી વધારે ટ્રાફિક પકવાન 4 રસ્તા પર થતો હતો. ત્યારે તેને લઈને હવે આ ઓવરબ્રિજ છે વાહન ચાલકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. કેમેરા પર્સન નિલેશ સોસા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.
કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસના આંકડા છુપાવાતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કોરોનાથી મોતના ખોટા આંકડા જાહેર કરાતા હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. કોરોના કેસના પોઝિટિવ આંકડા છુપાવી રહ્યા છે, હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યા છુપાવી રહી છે અને સ્મશાનોની અંદર મૃત્યુના આંકડા છુપાવી રહ્યા છે. માત્ર અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં કોર્પોરેશનના રેકોર્ડ પ્રમાણે 2739 એક્ટિવ કેસ છે એવું બતાવે છે. પરંતુ જે ખાનગી હોસ્પિટલો છે એ પૂરેપૂરી ભરાઈ ગયેલી છે. એમાં 3182માંથી 2845 દર્દીઓ આજે હોસ્પિટલમાં સારવાર લે છે અને 2916 દર્દીઓ છે એ હોસ્પિટલોમાં સારવાર કરે હેઠળ છે, જ્યારે કોર્પોરેશન એમ કહે છે કે 2739 દર્દીઓ જ એક્ટિવ છે, હોસ્પિટલની વાત નથી કરતી. તો રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોના કેસ અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના માર્ગદર્શન અનુસાર અમલ થઈ રહ્યો છે. કર્ફ્યુ પર રાત્રિનો જાહેર કર્યો, માસ્કની પણ કડકાઈથી જોગવાઈનો અમલ થાય એ પ્રમાણેની સૂચના આપી. શાળા કોલેજો શરૂ કરવા જે વિચાર કર્યો હતો એ વિચાર પણ અમે મુલતવી રાખ્યો. શાળા કોલેજો પણ હાલમાં ચાલુ ન કરવી એ પણ અમે નિર્ણય કર્યો. આ બધું જ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ જે માર્ગદર્શન આપે છે એ પ્રમાણે અમે તાત્કાલિક એનો અમલ કરીએ જ છીએ. તો બાયડ અને મોડાસાની સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને સ્વખર્ચે દવાઓ લાવવી પડે છે. તેની પાછળનું કારણ છે દવાઓની અછત. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા અને બાયડની 2 ટ્રસ્ટ સંચાલિત સરકારી કોવિડ હોસ્પિટલ છેલ્લા 3 મહિનાથી 1,75,00,000 રૂપિયાની ગ્રાન્ટની રાહ જોઈ રહી છે અને તેની સીધી અસર દર્દીઓની સારવાર પર પડી રહી હોવાના આરોપ ખુદ દર્દીઓના પરિવાર દ્વારા થઈ રહ્યા છે. કોરોના દર્દીઓના પરિવારજનોએ બહારથી દવાઓ લાવી લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાનો વારો આવ્યો છે. મોડાસા તાલુકાના જીવણપુરના કોરોના દર્દીના સંબંધી દ્વારા એક ઘટસ્ફોટ પણ કરવામાં આવ્યો, જેમાં દર્દીના સગાઓએ લોકો પાસે હાથ જોડી રૂપિયા ભેગા કરી લાખો રૂપિયાની દવાઓ દર્દી માટે કરાવી, છતાં પણ દર્દીઓનો જીવ પરિવારજનો બચાવી શક્યા ન હતા. સવાલ અહીં એ થાય છે કે સરકાર કોરોના દર્દીઓની સારવારનો ખર્ચ આપતી હોવાનો દાવો કરે છે, તો કોરોના દર્દીઓ માટેની દવાઓનો જથ્થો ક્યાં જાય છે? આ તરફ મોડાસાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોરને કોરોના હોસ્પિટલમાં ગ્રાન્ટના નાણાં ચૂકવવામાં થતી ઢીલાશ મામલે રજૂઆત મળી હતી. તેમણે તંત્રને આ બાબતે કાર્યવાહી કરવા માટે રજૂઆત કરી છે. ત્યારે મોડાસાની ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોવિડ હોસ્પિટલમાં 1 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે, જ્યારે કે બાયડની વાત્રક હોસ્પિટલમાં 75 લાખ રૂપિયાની રકમની ચૂકવણી નથી થઈ. હવે આ સંજોગોમાં ગરીબ પરિવારો દવા ન કરાવી શકતા ભગવાન ભરોસે દર્દીઓને સારવાર માટે દાખલ કરાવી રહ્યા છે. સંબંધી જે દાખલ કરેલા હતા, જે સાર્વજનિકની બાજુમાં આવેલ કોવિડ હોસ્પિટલની અંદર દાખલ હતા, તે કોરોના રિપોર્ટ તેમનો પોઝિટિવ આવ્યો હતો. તેમને તે દાખલ કર્યા પછી જે ડૉક્ટરો અમને જે દવાઓ લખી આપતા હતા એ દવાઓ અમે બહાર પ્રાઇવેટમાંથી અમારા સ્વખર્ચે લાવતા હતા, છતાં પણ અમે તેમને બચાવી ના શક્યા. સરકાર જે ગ્રાન્ટ આપવાની હોય સરકાર પણ ગ્રાન્ટ આપી નથી, એટલે અમે અમારા માણસને ગુમાવ્યો. દર્દીઓને પૂરતી ટ્રીટમેન્ટ મળતું નથી. હોસ્પિટલોમાં મેડિસિન ના હોય, ગેસ ઓક્સિજનના બાટલા ના હોય કે જમવાના પૈસા હોય, એ પૈસા ન હોવાના કારણે ગરીબ દર્દીઓ અત્યારે પ્રાઇવેટમાં 50 લાખ રૂપિયા જેવો ખર્ચો કરે છે. ઘણા બધા દર્દીઓનું મૃત્યુ પણ પૈસા ન ખર્ચવાને કારણે થાય છે. ત્યારે તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીની મુલાકાત છે. હાલમાં તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ. मेरी काशी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके प्रणाम बा. विशेषकर राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कछवा, कपसेठी, रोहनिया, सेवापुरी क्षेत्र के अन्न देवता लोगन के प्रणाम हो. आज
आप सभी को देव दीपावली और गुरु पर्व की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी भाई रमेश चंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रहा है। इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे, उन्हें पता है इस हाईवे पर कितनी ज्यादा मुश्किलें आती थी। जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक, दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेष काम की, लोग कहीं भी आने जाने से पहले ये जरूर देखते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाईवे बनाना हो, पुल फ्लाईओवर बनाना हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम
बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हो, उनका जीवन और आसान बने। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी वाहन, भारी व्हीकल्स शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6 लेन हाईवे से निकल सकेंगे। वहीं जिन दूसरे हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाईवे के बनने से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर की यात्रा और आसान हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं ये समाज के हर वर्ग को सुविधा देती है। विशेष तौर पर गरीब को, छोटे उद्यमियों को, मध्यम वर्ग को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। जब निर्माण कार्य चलता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होते हैं तो समय बचता है, खर्च कम होता और परेशानी भी कम होती है। कोरोना के इस समय में भी श्रमिक साथियों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट ही बने हैं। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। देश के 2 बड़े और आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर में से एक हमारे उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। भाइयों बहनों, रोड ही नहीं बल्कि एयर कनेक्टिविटी को भी सुधारा जा रहा है। 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब
1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना, उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इसके अलावा कुशीनगर के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, वाराणसी सहित पूर्वांचल में ही जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसका बहुत अधिक लाभ इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। ये एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से हुआ है, यानी बेहतर हवाई सेवाओं का सीधा लाभ यहां के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। गंगा जी पर जो देश का पहला इनलैंड वाटरवे है, इसका उपयोग किसानों की उपज के ट्रांसपोर्ट के लिए अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर भी काम हो रहा है। साथियों, सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल, ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है।
चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीफ के सीजन में करीब 400 किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिति बनाई गई, इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं यहां बेहतरीन काला चावल 300 रुपये तक बिक रहा है। बड़ी बात यह भी है कि ब्लैक राइस को विदेशी बाजार भी मिल गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को यह चावल निर्यात हुआ है, वो भी करीब 850 रुपये किलो के हिसाब से। यानी जहां धान का एमएसपी 1800 रुपये है, वहीं काला चावल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मुझे बताया गया है कि इस कामयाबी को देखते हुए इस बार के सीजन में लगभग 1000 किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 87 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते। इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई?
साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं। नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी
छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी। पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता है। यूरिया के लिए रात रात लाइन में ला करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था, और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहां तक कि कोरोना लॉकडाउन तक, उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी, तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी गई। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे, इसका प्रबंध किया। साथियों, सिर्फ दाल की ही बात करें, पल्सीज की बात करें, 2014 से पहले के 5 सालों में, हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। कितनी? 650 करोड़। कितना भैया? जरा बताइए, पूरे देश में कितना? 650 करोड़। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया आकर के? हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़, 49,000 करोड़
यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में, 2 लाख करोड़ का एमएसपी पर। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं साथियों। यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला। 1.5 लाख करोड़ उनकी सरकार के 5 साल। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2,000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2,000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भाई हमें 2,000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। साथियों, देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। साथियों, हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21 लाख किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं। भाइयों और बहनों,
वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। अंत में फिर एक बार आप सभी को इस आधुनिक हाईवे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। काशी का रूप और स्वरूप यूं ही भव्य बनता रहे, इसके लिए हमारे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। अभी मेरे बनारस में और भी कार्यक्रम हैं, यहां भी कई विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। कोरोना के कारण इस बार मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज आपके दर्शन हो गए, मुझे नई ऊर्जा मिल गई, आपके आशीर्वाद मिल गए, काम करने की नई ताकत मिल गई। आप इतनी बड़ी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીમાં અને તેમણે પ્રયાગરાજ સાથે જોડનારી 6 લેન જે સડક છે, માર્ગ છે, તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। કાશીને આ મોટી એક ભેટ આપી છે અને તે પ્રસંગે તેઓએ ખેડૂતો સાથે જે અન્યાય કોંગ્રેસે કર્યો છે તેના પર પણ કોંગ્રેસનું નામ લીધા વગર જ તેમના ઉપર વાર કર્યો હતો। આગળ વધીએ તો આંધ્રપ્રદેશના નરસાપુર શહેરની રહેવાસી વેંકટલક્ષ્મી આપણા સૌ માટે એક પ્રેરણા છે અને તેના વિસ્તારમાં સેપ્ટિક ટેન્ક ઉપચાર અને સફાઈની સુવિધાઓનો અભાવ હતો। એવું વિચારીને કે આ
એક વ્યવસાય હોઈ શકે છે. તેણે ટ્રકોની એક શ્રેણી ખરીદવા માટે પૈસા એકઠા કર્યા. તેને આકર્ષક બનાવવા માટે ટ્રકોને પેઇન્ટ કર્યા, ડ્રાઈવરોને કામ પર રાખ્યા અને પોતાના વ્યવસાયની જાહેરાત કરી. હવે આજે તેનો વ્યવસાય પ્રગતિ કરી રહ્યો છે અને તે નરસાપુરની નગરપાલિકા માટે સેનિટેશન વેન્ડર પણ બની ગઈ છે. హలో, మత్స్యప్రి ట్యాంక్ అండి. ఏ ఊరండి సార్? అలా నర్సాపూర్లో 25 సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నానండి. నర్సాపూర్లో మా బండి ఉందండి, సెప్టీ ట్యాంక్కి. అలా ట్యాంకీ నిండిపోతే ఫోన్ చేస్తా. మీది ఏ ఊరండి? సిమెంట్ ట్యాంకా, వరల ట్యాంకా అని చెబుతాం. మేము ఫోన్ ద్వారాగా బండి పంపిస్తాం. మేము చేసే వ్యాపారం అని. సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేకపోతే మాన్యువల్గా తీయించుకుని చాలా ఇబ్బంది, చాలా 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 చిరాకుగా ఉండి మొత్తం అలా రోడ్డు పక్కన పోసేసి చాలా చాలా న్యూసెన్స్గా ఉండేది. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వచ్చిన బాగా శుభ్రంగా బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఎక్కువగా చంద్రబాబు చేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకుని బాగా సర్వీస్ చేస్తుంది. దాని నుండి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జీవో 134 ప్రకారం మన మున్సిపల్ ఏరియాలో కొంతమందికి ఎంపానల్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో వెంకటలక్ష్మి గారు కూడా ఒకళ్ళు. జీవో 134 coming in play, the desludging quantity will increase, the periodicity of desludging increase, and she is very well aware of it, and she wants to buy new trucks. Government of Andhra Pradesh is seriously looking at supporting such enterprises through National Urban Livelihood Mission. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.